So, ladies and gentlemen, we are privileged and honored to have the Chief Secretary of Uttar Pradesh, Mr. Misra, with us, who has very kindly agreed to fly into Gorakhpur just for this UP Travel Mart. So, you can imagine the kind of revival that is happening of this UP Travel Mart under the able guidance of Mr. Mukesh Meshram, Principal Secretary, Tourism, Government of UP. And also with us we have the Commissioner, Mr. Dhingra, who was yesterday also with us in the inaugural session and has very kindly agreed to be here at this interactive session. So now the idea of this first session, of course it is a first session, but we are starting late. I understand that you all had a late night yesterday, a great entertainment program put together by the Department of Culture. और सर इनको हम लोगों ने कल फूलों की होली और मथुरा से ट्रूप आया था वो they were able to see and they were all mesmerized. So that happened yesterday. Also, FICCI representative, Mr. Vishwas Swaroop, who is the co-chair of FICCI Uttar Pradesh. And I have been engaging with you since yesterday. My name is Pratik Hira. I also represent, please have a seat. I also represent FICCI in my capacity of being the chair of the tourism committee. But today I change my role and I'll be on the side of the industry, sitting in front of you and interacting with the power stage. So let us call this a power stage. And as you have seen the commitment of this government, yesterday Mr. Awasthi, there was a question from one of the delegates who came from Punjab, and his problem was that they are not connected with Ayodhya. And Mr. Awasthi has promised them that they will write to the Ministry of Civil Aviation and get some kind of a flight support from Amritsar to Ayodhya. So you can imagine the kind of proactiveness that this government has. So they are go-getters basically. So I will not delay this introduction too much and I will right away open the session. And to start with, let me hand over to Mr. Swaroop. I welcome everyone to this wonderful session. I welcome the Shri D.S. Mishra ji, Shri Mukesh Mishram ji and Mr. Anil Dhingra ji, the Commissioner of Gorakhpur. I would just like to add, since we are running late, that UP has a great potential in tourism. There is a lot of potential in ecotourism, religious tourism, wellness tourism. So with these aspects, we can promote, the UP government can promote tourism in India as well as internationally. And we hope that the government is working in the right direction. And now with this, I leave the open session for further interaction with the Chief Secretary and Mukesh Mishram ji. So the idea of this session is that this is an open house session basically. So which is a very unique way that the government is doing it. So usually you must have seen governments and the government officers doing a one-way communication where they want to speak. But here the Chief Secretary and the Principal Secretary says that we want to hear more than speak. So the points will be noted and be sure that each point that you raise today will be taken up. So since yesterday you have experienced Gorakhpur, which was a welcome change for everybody. People didn't know that there exists an airport and we can come directly to Gorakhpur. So this was a welcome change, and I'm sure my personal perception about Gorakhpur changed. Of course, this is my 7th or 8th visit, but my personal perception, which I had of Gorakhpur some 20 years ago, has now changed drastically, and I'm sure most of these people have come for the first time, not only to Gorakhpur, but actually first time to the state of Uttar Pradesh as well, from different states of India. So I open the house right away to the audience. And you can just raise your hand and I will bring the mic to you. Good morning, sir.
Myself Ashwini Gupta from Amritsar, Punjab. I am past chairman for Travel Agent Association of Punjab and advisor to the Amritsar Airport. Sir, I am first time to Gorakhpur और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है. एक तो रामताल इतना साफ़ सुथरा आपका है, तो यहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट्स कर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा. दूसरा जो मेन चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है, गोरखपुर का बहुत बड़ा मठ है. हमारे पंजाबी भी यहाँ आना चाहते हैं, पर यहाँ पे कनेक्टिविटी का मैंने देखा इशू बहुत है. क्योंकि अभी मैं भी आया हूँ तो अमृतसर से लखनऊ तो डायरेक्ट फ़्लाइट है. लखनऊ से यहाँ बाय रोड आने में 5.5 घंटे लग गए. तो उसमें जो है हमारे जो लोग हैं वो आने में थोड़ा कतराएंगे. तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स करें तो डायरेक्ट फ़्लाइट को चल पड़े, और तो इससे बहुत ज़्यादा फुटफॉल बढ़ जाएगा. क्योंकि अमृतसर में भी काफ़ी फुटफॉल आता है, बाहर से फ़ॉरेन से भी आता है. और इधर मैंने देखा फ़ॉरेन के जो लोग हैं वो भी आना चाहते हैं. गोरखपुर है, साथ में अयोध्या है, और अब तो अयोध्या करके तो आपको कुछ बड़े लेवल पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट या कुछ लेके आना चाहिए. और यहाँ पर जैसे गोरखपुर में जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मैंने आपको बोला वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल मैं क्रूज़ पे था तो मैंने देखा कल वहाँ पर काफ़ी लोग थे, पर उनके लिए घूमने लिए कुछ था नहीं, ना कोई बोटिंग दूसरी चल रही थी. क्योंकि यहाँ पर डिनर क्रूज़ चल सकते हैं, बड़ा कुछ चल सकता है, बड़ी पॉसिबिलिटी है शहर में. और शहर बहुत साफ़ सुथरा है, इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ. और बाकी मैं यूपी टूरिज़्म का तहे दिल से थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है. सारा कल से हमें बाहर होटल का खाना पीना और सारा अरेंजमेंट जो है बड़ा अच्छा किया है. और आई विश देम ऑल द बेस्ट. थैंक यू. नमस्कार सर, मेरा नाम गुरजीत सिंह आहूजा है और मैं दिल्ली ट्रैवल ट्रेड जर्नल का एडिटर हूं. और इसी रविवार को मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाऊं. तो मेरे को एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, क्योंकि लास्ट टाइम मैं गया था 2 साल पहले जब दीपावली हुई थी और योगी जी ने इनवाइट किया था, तब हम गए थे. तो अभी जब मैं गया 2 साल के बाद तो अयोध्या में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आया. लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को जो लगा कि वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर द पीपल टू रीच द टेम्पल तक पहुँचने के लिए, स्पेशली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए पहुँचना बहुत बहुत मुश्किल है. मतलब पार्किंग में हमने गाड़ी पार्क की, वहाँ से आने के लिए कोई सुविधा इस तरह थी नहीं. जो ई रिक्शा थे वो इस तरफ से आ नहीं सकते थे. जो इलेक्ट्रॉनिक बसें थीं वो इतनी दगोदग भरी थीं कि मतलब कोई महिलाई या कोई बुज़ुर्ग उस पर चढ़ नहीं सकता था. इवन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी जो सीनियर सिटीजन्स हैं या वो विकलांग हैं, उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कई लोगों की उम्मीदें होंगी, अभिलाषा होंगी कि एक बार अपने जीवन में रामलला के दर्शन ज़रूर करें. तो मैं ये चाहूँगा कि इस पर एक तवज्जो डेफिनेटली दी जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, फैसिलिटीज़ इन प्लेस पुट की जा रही हैं. थैंक यू सर. हेलो सर, मेरा नाम मनीष शाह है और मैं बड़ौदा से आया हूँ और वडोदरा ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ. सर, यूपीटीएम जो आप कर रहे हैं इसमें मैं दूसरी बार आया हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है. और जो पिछली बार आया था उससे काफ़ी 5-6 साल हो गए, लेकिन काफ़ी चेंज लग रहा है. तो मैं ये चाहता हूँ सर, हमारे गुजरात से तो इतने टूरिस्ट, हमारे छोटे बड़ौदा सिटी से ही एक महीने में कम से कम 1500-2000 लोग आते होंगे, तो पूरे गुजरात से तो कितने आओगे. तो आप गुजरात से थोड़ी कनेक्टिविटी बढ़ाए और इतना मतलब हमारा ज़रूर आपसे आप लोगों को सपोर्ट रहेगा. जैसे वैसे तो है ही है, गुजरात और उत्तर प्रदेश का तो सपोर्ट एक दूसरे को. तो सर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप और भी मतलब ज़्यादा एजेंटों को बुलाए, क्योंकि एक बॉटम लाइन ये है कि दिखेगा तो बिकेगा. तो सर सारे एजेंटों को दिखाएं और जितना भी हो सके आपके ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशन दिखाएं, जिसकी वजह से लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आए. थैंक यू वेरी मच. So let me, there's a shy gentleman here. He's Martin from Latvia.
and he has some questions, and he's just to introduce him. He's bringing in spiritual tours to state of Uttar Pradesh since 2014, you said? Yes, we started 2014. And deep knowledge of Sanatan Dharma, which he's propagating back in his country and even in Russia. So he leads groups and FITs into the state of Uttar Pradesh, specifically confining himself to Varanasi and now opening up for Ayodhya. Namaskar, Koti Pranam to everybody. My name is Martins. I'm coming from Europe, Latvia, based now in Russia. Shortly, my story was I started investigating India through the Kumbh Mela in the Nasik. So, and then my trip continued, and we are practicing Sanatana Dharma in Latvia and then also in the Russia. So, and I feel that my duty is to help Western people show the Sanatana Dharma, this beauty of bhakti, of devotion, which is in the India. So, sir, my question is, as we are now traveling to Mathura, to Vrindavan, and different parts of Uttar Pradesh, could you please share the plans of, as we see now, in Ayodhya now is established the temple, which is a great blessing for everybody, showing the Dharma. And yesterday we was speaking that India is the heart of the Bhuloka. And in these times, when situation in the world is not so stable, so this what brings India, this love, this simplicity, this ancient knowledge is very, very important. And people invest mostly when they are satisfied on the achievements of life, they're still not happy. And sometimes when they come to India and feel this love, they feel more happy. They feel that there is future for life. And so please, could you share what is the future plans in Uttar Pradesh to more establish again the ancient temples, to show this love, to show this ancient knowledge, and give more opportunity to Western people to come experience this love, experience this great knowledge of Sanatana Dharma of Bharat. Thank you. रिस्पेक्टेड सर, हम लोग दिल्ली से आए हैं। हमें जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ पे अयोध्या में, यहाँ पर होटल्स, मेरा नाम संजय सहगल है। हमें जो प्रॉब्लम फेस हो रही है वो डिमांड और सप्लाई की है। अयोध्या में डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई बहुत कम है। जो होटल चेन है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो अभी आ चुके हैं, बट जो 2 स्टार 3 स्टार होटल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल भी हैं वो 7,000, 8,000, 10,000 चार्ज कर रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि अगर कोई होटल्स को थोड़ा बढ़ावा दे, बिकॉज फुटफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ इंडिया से, दिल्ली से, नोएडा से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से इतने ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, बट जो होटल की है वो सप्लाई बहुत कम है, और होटल्स वाले जो रेट मुंह मांगा रेट मांगते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस पे थोड़ा सा एम्पैथाइज करेंगे कि थोड़े प्रॉपर्टीज़ बढ़ाएंगे वहाँ पे, वो एक हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वो हो सके तो। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम जानवी है और मैं एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं सनातन धर्म पे कार्य करती हूँ। और हाल ही में अभी मुझे प्रधानमंत्री जी द्वारा नेशनल क्रिएटर अवार्ड भी मिला था। और यहाँ यूपी टूरिज़्म के इस इवेंट में आके जैसा कि हम देख रहे हैं कि टूरिज़्म बहुत अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है, और मैं भी यूपी से हूँ। सो वी वांट दैट कि अगर गवर्नमेंट एक मुहिम चला रही है इस उत्तर प्रदेश टूरिज़्म को आगे ले जाने के लिए, तो अगर हम क्रिएटर्स आपके किसी कैंपेन का हिस्सा बन सके एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंपेन टू प्रमोट सिटीज़ लाइक गोरखपुर,
अयोध्या, वाराणसी, तो हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को भी एक स्पेस मिलेगा एंड वी विल ऑल्सो गेट टू प्रमोट उत्तर प्रदेश वेरी प्राउडली. सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि वी गेट सच कैंपेन्स फ्रॉम यू. नमस्कार सर. वेरी गुड मॉर्निंग. मैं हरमिंदर सिंह सलूजा दिल्ली से हूँ सर. मैं दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से भी जुड़ा हूँ. मैं वाइस चेयरमैन हूँ गुरुद्वारा बंगला साहिब और अबाउट 33 years बीन इन द इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइंस, ट्रैवल एंड टूरिज़म. आई हैव सीन एवरीथिंग. आई हैव सीन इंडिया कम ऑफ एज. और आज जब गोरखपुर में 2 दिन एक्सपीरियंस किया तो मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूं. आप एक स्वर्णिम युग की शुरुआत कर रहे हैं यूपी के लिए, ना सिर्फ यूपी के लिए बल्कि भारत के लिए. आप सब तहे दिल से इस मुबारकबाद के हकदार हैं. जिस तरह की डेवलपमेंट हम लोग देख पा रहे हैं, चौतरफा डेवलपमेंट हो रही है यूपी में. एक समय था 10 साल पहले जब घरों में बिजली नहीं आती थी, आज बिजली जाती नहीं है और एक दूर दराज गांव तक भी आपने डेवलपमेंट पहुंचाई है. टूरिज़्म के नज़रिए से अगर देखें तो सर्किट बहुत अच्छे आपने ट्रायंगल प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या डेवलप हो रहा है. जैसे मेरे कोलीग ने बताया कि 3 स्टार और 2 स्टार लेवल पे मासेस के लिए जो एकोमोडेशन है उसकी शॉर्टफॉल है और उसमें अगर आप मिड स्केल ब्रांड्स को और स्टार्टअप में जो ऑपरेटर्स हैं जो एक कंसोर्टियम बना के काम कर सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, अगर उनको आप मौका देंगे तो आई एम श्योर इस कमी को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है और एक प्रोफेशनल एथिकल एक्सपीरियंस जो है वो डिलीवर किया जा सकता है. एंड देयर आर एन नंबर ऑफ आइटनरीज विच कैन बी डेवलप फॉर इनबाउंड एज वेल एज डोमेस्टिक. और हमें आप लोगों का ज़रूर सहयोग चाहिए होगा. हम जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है हम आपको पॉइंट नोट करा सकते हैं और अपनी सजेशन बाकायदा आपको बता सकते हैं. बट उसके ऊपर कितनी जल्दी आप लोग एक्ट करेंगे और सहयोग देंगे और एक लीवे मिलेगा तो डेफिनेटली ये शॉर्ट कमिंग्स जो हैं वो भी बहुत जल्दी दूर होंगी और एक स्वर्णिम युग जो आपने एक शुरुआत की है वो बहुत जल्दी इंटरनेशनल मैप पे आप यूपी को बहुत अच्छा इस्टेब्लिश कर पाएंगे. थैंक यू. सर नमस्कार. मैं अभिषेक सांकरे. आई एम अ टूर ऑपरेटर बेस्ड इन वाराणसी. मैं इस उत्तर प्रदेश टूरिज़्म का एक फैमिली मेम्बर ही हूँ सर. और what I am going to say, probably only the operator based in Uttar Pradesh or Varanasi and Ayodhya can only say this. The operators in Varanasi and Ayodhya are very much satisfied. Their stomachs are filled. Whatever they wanted, it is there. Yesterday, Awasthi Saab said that we are breaking all the record, be it Makkah, be it Vatican, all the records are broken by these 2 cities, sir. But being into business, we are always ambitious as well at the same time. We have enough business by blessings of Honorable Prime Ministers and all the work done by Honorable Chief Minister. But sir, what we see after Kashi Vishwanath corridor and Ayodhya corridor, Ram Janmabhoomi, there is work also going in Vindhyavasini corridor, which will soon come up. But nearby Vindhyavasini corridor, sir, there is one IST line which is passing from Mirzapur and just 1 kilometer from Vindhyachal. I explored it, done a research on that particular sector a lot. सर हम जब लंदन जाते हैं तो वहाँ ग्रीनविच मीन टाइम पे एक मेमोरियल एक स्थल बना हुआ है जहाँ पे 60 पाउंड लोग दे के वहाँ सेल्फी लेते हैं, अंदर जाते हैं. ऑब्वियसली दैट अमाउंट and that thing is not possible here, but we want some kind of thing should be made there, क्योंकि वो 1 किलोमीटर विंध्याचल से एक साइट सीइंग पॉइंट बढ़ेगा,
जियो टूरिज़्म करने वाले IST लाइन कहाँ से गुजर रही है जो हमारे देश को यूनाइट करती है. वी हैव स्टैचू ऑफ यूनिटी, वी कुड हैव a line of unity that is passing from our own city विंध्याचल. इस तरीके की कुछ हम वहाँ मेमोरियल तो सर कुछ वहाँ पे अगर हम ऐसा बनाते हैं तो एक पॉइंट साइट सीइंग का बढ़ेगा. जियो टूरिज़्म वाले इसको लव करेंगे, बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड जियो टूरिज़्म को चाहने वाले हैं, वो आएंगे. साथ में अगर हम सलखन जाते हैं सर, सलखन के लिए उत्तर प्रदेश टूरिज़्म और BHU मिलके काफ़ी प्रयास कर रहा है यूनेस्को के लिए. और सलखन सर वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट फोसिल पार्क है, लेकिन सर मार्किंग की बड़ी कमी है. हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में उसको प्रमोट करने का बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रोड साइड में मार्किंग की ये सलखन पार्क जा रहा है, या रोड साइड में नेशनल हाईवेज़ पे जब भी हम क्रॉस करते हैं अगर वो IST लाइन कहीं क्रॉस कर रही है तो वो मार्किंग अगर हो तो एटलीस्ट लोगों को जागरूकता हो कि ऐसी कुछ चीज़ है जो इधर से जा सकते हैं. सो ये एक जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है. और तीसरी चीज़ हमारे इसी विंध्य सेक्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट है सर, रॉक पेंटिंग. वर्ल्ड का सबसे पहला पाया जाने वाला रॉक पेंटिंग है. उसके 12 साल बाद स्पेन में अल्टामीरा में पाया गया, जहां लाखों लाख टूरिस्ट पर ईयर विज़िट करते हैं. हमारे यहाँ सर बहुत कम लोग विज़िट करते हैं और बड़ी गंदगी फैली होती है वहाँ पे. तो एक रिक्वेस्ट तो ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर वो आता है तो थोड़ा उस जगह का ख्याल रखें, रॉक पेंटिंग को बचाने के लिए ध्यान देना चाहिए. दूसरी चीज़ सर, उसको प्रमोट करने का बड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है हम लोगों को. जहाँ भी इंफॉर्मेशन डालने की ज़रूरत है, साथ साथ उन चीज़ों को, जो चीज़ें लेसर नोन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है. चूँकि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है और आने वाले समय में यूपी में और बहुत कुछ आ जाएगा, बट ये चीज़ें जो हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगी. तो इन जगहों के बारे में आपके ध्यान में लाना चाहता था सर. थैंक यू वेरी मच. जय श्री राम. सर मैं गुजरात से हूँ, सुरेंद्रनगर से. मुझे सर अयोध्या में जो अपने पास स्टे का कमी है, इसके लिए बजट तो नहीं बोल सकता हूँ, पर एटलीस्ट 2 स्टार चाहिए. जो ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं जो इकोनॉमिकली उनको ट्रैवल करने के लिए ये ज़रूरी है. हमें सर वो आपका पॉलिसी कोई है तो मुझे इंटरेस्ट है सर, मेरा ट्रस्ट है, तो आई कैन ओपन सेवा सदन लाइक फॉर ऑल कम्युनिटीज़, ओपन फॉर ऑल, so we can take interest. And I am also रघुवंशी only as a, so मुझे पॉलिसी के लिए किसको मिलना है वो थोड़ा सा मुझे जानना है. थैंक यू सर. सर नमस्कार. मैं कुंभ मेला 2025 प्रयागराज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर. We set up a tented accommodation at the Kumbh Mela, and we are again vendors of the UP tourism. Or so 2019 also we had set up a tented accommodation at the Kumbh Mela. So few disadvantages or few problems which we faced last time was that we had no special access, or for our guests there was no special access for people to enter the Mela or go to the Snan area, which I would request sir to give us some special passes for the 10 city people or the 10 city guests, so that they, sir, Kumbh village is the name, Varun Agarwal sir. Varun sir. So the only problem or the complaint we received from our guest was कि you have no special access even when you are with the government. So this is our request sir, that if we could have some special arrangements, it would really make the guests feel easier to come to us, and it would promote the tented accommodation which is given by the government, not the private ones. And this is all my request was, sir. Also, sir, I would want to request that this is a very good platform, and none of the 10 city people are here. So if we could be invited to these events as the approved vendors of the Kumbh village, of the Kumbh Mela, then we could be here and expose ourselves and tell people what we actually are doing to the travel agents, so that we can get those bookings and get those promotions
through you, sir, through your channel and network. Thank you, sir. Namaskar, I'm Dr. Kavita and I run a company called Das Disha at the Kumbh city and Banaras, Allahabad. Allahabad में ज़्यादा हम लोग tours कराते हैं, very well researched tours. We have a similar problem कि हमें अगर अपने guests जो वहाँ ही पे हैं उनको भी अगर घुमाना है तो हमारी ही entry काफ़ी restricted होती है. It takes us about 4 kilometers of walking to reach there. इस बार we are trying to arrange for traffic अपने हिसाब से तरीके निकालें, but if it's a proposition जो अगर यूपी tourism खुद ही promote कर दे तो we will be able to tie up with them. सर मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मैं बिट एक ट्रैवल इवेंट है इटली में, बिट मिलान, वो सारे वर्ल्ड को कवर करता है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इंडिया में. तो मैं चाहता हूँ जैसे यूपी के पास अपार खजाना है चीज़ों का, धार्मिक का, घूमने फिरने का, तो इसको यूरोप में लेके जाया जाए और उसमें मैं चाहता हूँ कि यूपी टूरिज़्म को उसका पार्टनर स्टेट बनाकर उसको वर्ल्ड लेवल के ऊपर ले जाया जाए, ताकि इसको बाहर नॉट ओनली इंडिया, बाहर फॉरेन कंट्री से भी देख, जैसे लोग वाराणसी आते हैं, अयोध्या आते हैं और दूसरे पार्ट्स में भी जाएं. तो मैं चाहता हूं कि उसके लिए आपको अगर परमिशन दें तो मैं उनसे बात करके आपको स्पेशल VIP स्टेटस वहाँ पे दिलाऊंगा, और अगर हो चाहे तो हमारे CM योगी साहब का भी वहाँ पर बहुत अच्छा होगा. तो मैं चाहता हूँ कि उसमें आप पार्टिसिपेट करें. थैंक यू. Hello, my name is Yves Lavoie from Montreal, Canada. I was all my life a banker and an IT specialist. During my jobs, it's the first time I met actual Indians that came to Montreal to help us in project. After 30 years of this, I decided to do what I love and work in travel industry, in tourism industry. My first duty, I was invited by an incredible India event in Montreal. There were tour operators talking to us in Montreal, and I got an invitation for UPTM in 2016, and it was my first visit in India. And since then, I came many times, and I convinced many people in Canada to come and visit. I fell in love with Varanasi, the city of Varanasi, and my last visit was in 2019. When I came back this year, I noticed many changes around the Ghats that was done very quickly. In Canada, it would take 20 years to do the same thing. So I encourage you to keep going at this, and I wonder if you're going to do more events like this UPTM or other events to help us tour operators promote and invite Canadians here in wonderful India. Thank you. Sir, namaskar. This is Nageswara from Guntur, Andhra Pradesh, South India. My sincere request is to maintain Telugu boards also at Ayodhya. Yesterday I have been visited Ayodhya, sir. I have seen a small board, way to temple in Telugu. I felt really happy. See, lot of people from South India, especially from Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu, they are hugely and a very big crowd. They are also, I found yesterday, sir. Really is appreciable. So what I try to bring to your kind notice is, please maintain proper Telugu boards also, because South Indian people, they don't know actually, we are very poor in Hindi language. So we can talk, but हमारा हिंदी लैंग्वेज इतना अच्छी भी नहीं बोल सकते, मैं भी इतना अच्छी तरह से बोल नहीं सकता. मैं क्या बोल रहा है सर, एक कोई भी एक IVRS नंबर भी दे दीजिए, जैसे हेल्पलाइन, इसमें आप ऑप्शन दीजिए कर्नाटका, कन्नड़ा,
तमिलनाडु के लिए तमिल और तेलुगु के लिए आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु एक IVRS हेल्पलाइन दीजिए, हमको भी बहुत अच्छा लगता है. एज ए ट्रैवल एजेंट वी कैन ईजिली सेंड मेनी पीपल विथ ह्यूज क्राउड सर, पर्टिकुलर इन वाराणसी एंड अयोध्या. थैंक यू सो मच. My name is Balaji. I am from Singapore. We have a lot. I'm from Singapore. Balaji. We have a lot of visitors coming to Uttar Pradesh, mainly from the Indian community and also from the Chinese community, coming for Buddhist program. And we see a huge potential. And over the years, I see enormous improvement in the infrastructure, accommodation, and also friendliness of the people. My wish list would be to accommodate more Chinese restaurants in this area, because wherever Indians are going, Indians insist on Indian food being available. Similarly, we would be very happy if we have more Chinese food available in smaller areas, you know. And more active promotion in Southeast Asia. हेलो हेलो नमस्कार जी. हेलो नमस्कार जी, मेरा नाम मधु शर्मा. हम लोग महाराष्ट्र नासिक से आए हैं. आप सबने हमारा बहुत ही आदर सत्कार वगैरह सब कुछ किया. बस इसके पीछे उत्तर प्रदेश टूरिज़्म और फिक्की का जो कोऑपरेशन था, तो मैं चाहूँगा कि हम सब लोग फिक्की के यहाँ के चेयरमैन श्री हीरा साहब और जय श्रीवास्तव और दूसरे श्रीनाथ जी मिश्रा है, कम से कम उनसे तो हमको मिलवाइए कि जिन्होंने हमें आने का यहाँ पर सौभाग्य दिया. और आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बुला के हमको बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन दिया. जय हिंद. सर नमस्कार, मेरा नाम सपन मिश्रा है. मैं दी सेंट्रम लखनऊ होटल की तरफ से हूँ. सर मैं यहाँ आपको शुक्रिया कहने आया हूँ कि 2018 में जो आप MOU लेकर के आए थे, उसके वजह से बहुत सारे होटल्स आ रहे हैं. और उसी की वजह से मैं खुद चेन्नई छोड़ के लखनऊ आया और यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा हूँ. और मुझे खुद ज्ञात हुआ कि गोरखपुर में भी जो रेडिसन होटल खुला है वो भी आपके MOU के वजह से ही हुआ है. तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सर. थैंक यू सर. Sir, good morning. Good morning. My name is Kuldeep. I run a homestay in Ayodhya. और 2021 में जब हमने होम स्टे खोला था तो वी वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि अयोध्या कैसा दिखने वाला और क्या होने वाला है, क्या वो बेनिफिशियल होगा. और आज मैं कह सकता हूँ कि अयोध्या में जो बदलाव इन 2 सालों में जो हमने देखा है, जो विटनेस किया है, इट्स अनप्रेसिडेंटेड. मतलब इतना बड़ा चेंज. अब उस चीज़ को, उस बदलाव को देखने के लिए जो हमारे गेस्ट आते हैं सर, उनको एक छोटी सी दिक्कत जो फेस करनी होती है वो ये है कि जो व्हीकल्स हैं वो अलाउड नहीं होते. जो मेन अयोध्या का जो रोड है, जो कनेक्टिविटी है, जो मंदिर को जाता है, और ख़ास करके जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका जो नंबर से जो वॉल्यूम है दैट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट. उनको गाड़ी से अंदर आना होता है और उनकी गाड़ी 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर पहले रोक दी जाती है. देयर आर सो मेनी बैरिकेडिंग्स दैट दे हैव टू फेस थ्रू, सो मच ऑफ कोऑर्डिनेशन विच हैज़ टू गो थ्रू. तो उससे उनको गेस्ट को बहुत दिक्कत होती है जो आते हैं. जब तक वो होटल पहुँचते हैं या होम स्टे पहुँचते हैं वो ऑलरेडी टायर्ड और थक चुके होते हैं. तो हम चाहते हैं कि अगर उसको थोड़ा सा ईज आउट कर दिया जाए कि उनकी एंट्री एग्जिट, और स्पेशली सीनियर सिटीजन्स हैं अगर गाड़ी में, तो उस चीज़ को अगर ध्यान में रखते हुए चीज़ों को, प्रोसेसेस को थोड़ा सा ईज आउट हो तो बहुत सहूलियत होगी. और दूसरी चीज़ ये है सर कि जो होम स्टेज़ के जो लाइसेंसिंग के जो प्रोसेसेस हैं उसमें जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो एक रोड ब्लॉकेज की तरह हमें काम, मतलब वो बैरियर की तरह होता है. क्योंकि जो पुलिस है दे फॉलो द सराय एक्ट एंड द कॉमर्शियल होटल प्रोसेस.
और होम स्टे में क्या आता है कि बस एक परिवार है जो कि उसको चला रहा होता है, तो उनको उस चीज़ में बहुत डिले 2-3 महीने लग जाते हैं। तो उसको उसमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि अगर उसको थोड़ा सा और ईज आउट कर दिया जाए तो विल बी एबल टू डिलीवर वेरी गुड एक्सपीरियंस टू गेस्ट थ्रू होम स्टेज। थैंक यू। So, thank you very much for all your questions, problems, which are sure to be sorted out by the Chief Secretary and the Principal Secretary and the Commissioner, whatever is the local problem. But because everybody is tired, so what we have decided is that we will go for the tea, and after tea, he will take a session in the big hall, the main hall. So all of you are requested to enjoy your tea here while we take the Chief Secretary there, and then assemble in that hall for his comments and followed by the valedictory. While after that valedictory is over, the sessions will continue till the evening in this hall, and buyers can network and meet the sellers. So, sir, thank you very much for being here.